چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے۔ الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے۔ ان کی تصویر، تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث کون ہوگا؟ سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا ایم کیو ایم پاکستان خوف زدہ ہے؟ وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی؟ کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی؟ کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے؟ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں۔ کیا الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ یہ بحث چھڑ چکی ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزاں کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے۔ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے۔ بینرز پر لکھا گیا ہیلو 1 2 3، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا، اس کو بینرز پر آویزاں کیا گیا۔ پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے؟ الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے۔ ان کی تصویر، تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث کون ہوگا؟ سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا ایم کیو ایم پاکستان خوف زدہ ہے؟ وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی؟ کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی؟ کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے؟ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں۔ کیا الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ یہ بحث چھڑ چکی ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزاں کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے۔ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے۔ بینرز پر لکھا گیا ہیلو 1 2 3، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا، اس کو بینرز پر آویزاں کیا گیا۔ پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے؟ الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے۔ ان کی تصویر، تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں
एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अयादा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या MQM पाकिस्तान खौफज़दा है, वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी, क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले MQM लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं, ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर्स और पोस्टर आवेज़ा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेज़ा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। MQM लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अयादा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या MQM पाकिस्तान खौफज़दा है, वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी, क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले MQM लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं, ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर्स और पोस्टर आवेज़ा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेज़ा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। MQM लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अयादा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस
कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफज़दा है, वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी, क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं, ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमायाँ होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर्स और पोस्टर आवेज़ा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेज़ा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफज़दा है, वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी, क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमायाँ होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर्स और पोस्टर आवेज़ा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेज़ा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफज़दा है, वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी, क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं, ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई।
الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزاں کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے۔ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے۔ بینرز پر لکھا گیا ہیلو 1 2 3، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا، اس کو بینرز پر آویزاں کیا گیا۔ پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے؟ الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے۔ ان کی تصویر، تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ MQM لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث کون ہوگا؟ سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا MQM پاکستان خوف زدہ ہے؟ وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی؟ کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی؟ کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے؟ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں۔ کیا الیکشن سے پہلے MQM لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ یہ بحث چھڑ چکی ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزاں کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے۔ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے۔ بینرز پر لکھا گیا ہیلو 1 2 3، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا، اس کو بینرز پر آویزاں کیا گیا۔ پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے؟ الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے۔ ان کی تصویر، تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ MQM لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث کون ہوگا؟ سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا MQM پاکستان خوف زدہ ہے؟ وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی؟ کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی؟ کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے؟ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں۔ کیا الیکشن سے پہلے MQM لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ یہ بحث چھڑ چکی ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔
कराची, हैदराबाद और नवाब शाह में बैनर्स और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफजदा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी? क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमायाँ होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाब शाह में बैनर्स और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफजदा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी? क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमायाँ होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाब शाह में बैनर्स और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से
कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफजदा है? वो इससे रिलेटेड क्या इकदाम करेगी? क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफजदा है? वो इससे रिलेटेड क्या इकदाम करेगी? क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से
कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफज़दा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दामात करेगी? क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेज़ा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेज़ा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफज़दा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दामात करेगी? क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेज़ा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेज़ा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी।
ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث کون ہوگا؟ سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا ایم کیو ایم پاکستان خوف زدہ ہے؟ وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی؟ کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی؟ کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے؟ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں۔ کیا الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ یہ بحث چھڑ چکی ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزہ کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے۔ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے۔ بینرز پر لکھا گیا ہیلو 1 2 3، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا، اس کو بینرز پر آویزہ کیا گیا۔ پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے؟ الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے۔ ان کی تصویر، تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث کون ہوگا؟ سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا ایم کیو ایم پاکستان خوف زدہ ہے؟ وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی؟ کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی؟ کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے؟ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں۔ کیا الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ یہ بحث چھڑ چکی ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزہ کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے۔ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے۔ بینرز پر لکھا گیا ہیلو 1 2 3، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا، اس کو بینرز پر آویزہ کیا گیا۔ پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے؟ الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے۔ ان کی تصویر، تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث
कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एम पाकिस्तान खौफजदा है, वो इससे रिलेटेड क्या इकदाम। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एम पाकिस्तान खौफजदा है, वो इससे रिलेटेड क्या इकदाम करेगी? क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैक डोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैक डोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एम पाकिस्तान खौफजदा है, वो इससे रिलेटेड क्या इकदाम करेगी? क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैक डोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैक डोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई।
الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزاں کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے۔ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے۔ بینرز پر لکھا گیا ہیلو 1 2 3، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا، اس کو بینرز پر آویزاں کیا گیا۔ پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے؟ الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے۔ ان کی تصویر، تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ MQM لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث کون ہوگا؟ سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا MQM پاکستان خوف زدہ ہے؟ وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی؟ کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی؟ کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے؟ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں۔ کیا الیکشن سے پہلے MQM لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ یہ بحث چھڑ چکی ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزاں کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے۔ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے۔ بینرز پر لکھا گیا ہیلو 1 2 3، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا، اس کو بینرز پر آویزاں کیا گیا۔ پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے؟ الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے۔ ان کی تصویر، تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ MQM لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث کون ہوگا؟ سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا MQM پاکستان خوف زدہ ہے؟ وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی؟ کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی؟ کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے؟ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں۔ کیا الیکشن سے پہلے MQM لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ یہ بحث چھڑ چکی ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔
कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर्स और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी इससे क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफजदा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी? क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमायाँ होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर्स और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी इससे क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफजदा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी? क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमायाँ होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं।
कराची, हैदराबाद और नवाब शाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। MQM लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या MQM पाकिस्तान खौफज़दा है, वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी। क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी। क्या बैक डोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैक डोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले MQM लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं। ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाब शाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। MQM लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या MQM पाकिस्तान खौफज़दा है, वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी। क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी। क्या बैक डोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैक डोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले MQM लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं। ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाब शाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से
कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अयादा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफजदा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी? क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अयादा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफजदा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी? क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में
انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے, کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے. اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے, اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں. مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا. الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا, کراچی کا اصل وارث کون ہوگا. سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے. کیا ایم کیو ایم پاکستان خوف زدہ ہے, وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی, کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی, کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے, بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں. یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں. کیا الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں, یہ بحث چھڑ چکی ہے. پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا. الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں. الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں. عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے. متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں. کراچی, حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزہ کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے. حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے. بینرز پر لکھا گیا, ہیلو 1 2 3, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے. یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا, اس کو بینرز پر آویزہ کیا گیا. پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی. کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے. الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے. ان کی تصویر, تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی. ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے, کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے. اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے, اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں. مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا. الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا, کراچی کا اصل وارث کون ہوگا. سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے. کیا ایم کیو ایم پاکستان خوف زدہ ہے, وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی, کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی, کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے, بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں. یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں. کیا الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں, یہ بحث چھڑ چکی ہے. پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا. الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں. الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں. عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے. متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں. کراچی, حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزہ کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے. حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے. بینرز پر لکھا گیا, ہیلو 1 2 3, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے. یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا, اس کو بینرز پر آویزہ کیا گیا. پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی. کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے. الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے. ان کی تصویر, تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی. ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں
एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या MQM पाकिस्तान खौफज़दा है, वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी, क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैक डोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैक डोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले MQM लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं, ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर्स और पोस्टर आवेज़ा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेज़ा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। MQM लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या MQM पाकिस्तान खौफज़दा है, वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी, क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैक डोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैक डोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले MQM लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं, ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर्स और पोस्टर आवेज़ा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेज़ा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। MQM लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस
कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफज़दा है, वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी, क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं, ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गईं। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमायाँ होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेज़ा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेज़ा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफज़दा है, वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी, क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं, ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गईं। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमायाँ होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेज़ा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेज़ा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफज़दा है, वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी, क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं, ये बहस छिड़ चुकी है।
پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزاں کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے۔ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے۔ بینرز پر لکھا گیا ہیلو 1 2 3، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا، اس کو بینرز پر آویزاں کیا گیا۔ پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے؟ الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے۔ ان کی تصویر، تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ MQM لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث کون ہوگا؟ سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا MQM پاکستان خوف زدہ ہے؟ وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی؟ کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی؟ کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے؟ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں۔ کیا الیکشن سے پہلے MQM لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ یہ بحث چھڑ چکی ہے۔
पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गईं। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफज़दा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी? क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गईं। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफज़दा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी? क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गईं। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं।
कराची, हैदराबाद और नवाब शाह में बैनर्स और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। MQM लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अयादा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या MQM पाकिस्तान खौफज़दा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी? क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैक डोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैक डोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले MQM लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाब शाह में बैनर्स और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। MQM लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अयादा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या MQM पाकिस्तान खौफज़दा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी? क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैक डोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैक डोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी ख़बरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले MQM लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाब शाह में बैनर्स और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से
कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी इससे क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफज़दा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी? क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गईं। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमायाँ होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेज़ा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेज़ा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी इससे क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफज़दा है? वो इससे रिलेटेड क्या इक़दाम करेगी? क्या इंतख़ाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गईं। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमायाँ होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेज़ा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेज़ा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी।
ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث کون ہوگا؟ سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا ایم کیو ایم پاکستان خوف زدہ ہے؟ وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی؟ کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی؟ کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے؟ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں۔ کیا الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ یہ بحث چھڑ چکی ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزہ کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے۔ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے۔ بینرز پر لکھا گیا ہیلو 1 2 3، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا، اس کو بینرز پر آویزہ کیا گیا۔ پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے؟ الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے۔ ان کی تصویر، تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث کون ہوگا؟ سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا ایم کیو ایم پاکستان خوف زدہ ہے؟ وہ اس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کرے گی؟ کیا انتخابات سے قبل الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی؟ کیا بیک ڈور رابطوں میں کوئی سچائی ہے؟ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری خبریں عید سے پہلے اور اب تک سب گرم ہیں۔ کیا الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم لندن یا الطاف حسین کی کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ یہ بحث چھڑ چکی ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ الطاف حسین کی واپسی کی خبریں چند بڑے اخبارات میں نمایاں ہونے لگیں۔ عید سے قبل کراچی میں الطاف حسین کے نام کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ متحدہ لندن کی سیاسی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بینرز اور پوسٹر آویزہ کیے گئے جس پر الطاف حسین کی تصویر تھی اور عید مبارک کے پیغامات تھے۔ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں الطاف حسین کے حق میں بینرز لگا دیے گئے۔ بینرز پر لکھا گیا ہیلو 1 2 3، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی الطاف حسین کا جو مخصوص انداز ہے خطاب کا، اس کو بینرز پر آویزہ کیا گیا۔ پولیس یا رینجرز کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کیا الطاف حسین کو آہستہ آہستہ چھوٹ دی جا رہی ہے مین سٹریم سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹری دینے کے لیے؟ الطاف حسین پر 22 اگست 2015 سے پابندی عائد ہے۔ ان کی تصویر، تقاریر اور یہاں تک کہ کوئی بھی نام لینے کا بھی میڈیا پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں انٹری کیا قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیا کراچی کی ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں ملکی سیاست کے اور بالخصوص کراچی کی سیاست کے، اس میں لوگ ابھی بھی الطاف حسین کو ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ مختلف پروگرام میں لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین واپس آتے ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ الطاف حسین کی واپسی سے کیا سیاست میں بھوچال آئے گا؟ کراچی کا اصل وارث
कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफजदा है, वो इससे रिलेटेड क्या इकदाम करेगी, क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं, ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफजदा है, वो इससे रिलेटेड क्या इकदाम करेगी, क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं, ये बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमाया होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो मखसूस अंदाज़ है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ़ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है, क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा, कराची का असल वारिस कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफजदा है, वो इससे रिलेटेड क्या इकदाम करेगी, क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी, क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं, ये बहस छिड़ चुकी है।
पाकिस्तानी सियासत में एक और चैप्टर का आगाज हो गया। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई। अल्ताफ हुसैन की वापसी की खबरें चंद बड़े अखबारात में नुमायां होने लगी। ईद से कबल कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। मुत्तहदा लंदन की सियासी सरगर्मियां आज़ादाना तौर पर जारी थीं और अब तक जारी हैं। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बैनर्स और पोस्टर आवेजा किए गए जिस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी और ईद मुबारक के पैगामात थे। हैदराबाद में बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर लिखा गया, हेलो 1 2 3, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यानी अल्ताफ हुसैन का जो मखसूस अंदाज है खिताब का, उसको बैनर्स पर आवेजा किया गया। पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता छूट दी जा रही है मेन स्ट्रीम सियासत में और कराची की सियासत में एंट्री देने के लिए? अल्ताफ हुसैन पर 22 अगस्त 2015 से पाबंदी आयद है। उनकी तस्वीर, तकारीर और यहाँ तक कि कोई भी नाम लेने का भी मीडिया पर पाबंदी आयद की गई थी। एमक्यूएम लंदन की सियासत में एंट्री क्या करीब होने जा रही है? क्या कराची की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही है? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की सियासत के और बिलखुसूस कराची की सियासत के, उसमें लोग अभी भी अल्ताफ हुसैन को वोट देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोगों ने इस बात का अदा किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन की वापसी से क्या सियासत में भौचाल आएगा? कराची का असल वारिस कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खौफजदा है? वो इससे रिलेटेड क्या इकदाम करेगी? क्या इंतखाबात से कबल अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन होगी? क्या बैकडोर राब्तों में कोई सच्चाई है? बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं? ये सारी खबरें ईद से पहले और अब तक सब गर्म हैं। क्या इलेक्शन से पहले एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी के इम्कानात हैं? ये बहस छिड़ चुकी है।